खुशबू सी इधर आ रही है जाफरान की, खिड़की कोई खुली है फिर उनके मकान की। किसी शायर ने जब ये शायरी लिखा तो वो एक कुछ तंग गलियों से गुजर रहा था जहां से उसे खाने की खुशबू मिल रही थी। बहुत सा एहसास अपने अंदर समेटे हुए है नॉर्थ इंडिया। और जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया का खाना, वहाँ का खान पान इस चीज़ से कभी परे नहीं रहा, कभी छूटा नहीं। Kharagpur is the home where an amalgamation of all the diverse cultures and practices from around the nation happens as people come and settle in. The nuances in their cuisines are heavily influenced by their homeland, which in turn had been shaped by the place's history, their conquerors, trade partners, and the religious and cultural practices of its populace. Stepping into Tab Story's second episode of Flavors of Kharagpur, we will listen to the story of North Indian cuisine, which in itself is so diverse and immensely close to the hearts of not only our native population but to the entire world, and how it has come along the diversity of the rail city. With everything happening in the world these days, finding unity and bringing people together seemed like a worthwhile idea. And food has the unique ability to engross people like very few other things in life. खाना बनाना एक एहसास है और वो एहसास उस मोहब्बत को दिखाता है कि आप किसे वो खाना पेश कर रहे हैं। अगर उससे आपको तारीफ़ मिलती है तो आपको लगता है कि आपने उससे सच्ची मोहब्बत की है। और वो मोहब्बत जब आप दोबारा खाना बनाते हैं या दोबारा कुछ करते हैं तो वो मोहब्बत और दुगनी तरीके से आप उस खाने में पिरोने की कोशिश करते हैं। यही कोशिश हमने करी रूम में किया है। हमने यहाँ पर खाना बेचा नहीं है, अपनी मोहब्बत खाने के ज़रिए लोगों तक पहुँचाई है। इसलिए हर एक खाने को पूरी नज़ाकत के साथ हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। With this idea of bringing in North Indian dishes just as authentic and full of flavors as they are served in their native places, Mr. Vijendra Kumar Sharma and Mr. Nitin Sharma have come along a dusty road with a lot of firsts in Kharagpur. So, if I talk about our journey, it started almost, I would say, 8 years back. At that time, we started with American fried chicken. हमने बहुत हद तक लोगों को भी एक टेस्ट या फिर एक दूसरे साइड ऑफ वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाया. Once they started eating the burgers, the fried chicken, they got to know कि नहीं ये सारे डिशेस भी हैं और मिल सकते हैं हमें खड़गपुर में. हमने बोला कि ठीक है, हमने स्टार्ट तो बर्गर और KFC स्टाइल ऑफ थिंग से किया था, बट पिज़्ज़ा वाला चीज़ अभी भी मिसिंग था. तो हमने फिर इसी के लिए स्क्रमीज बनाया, वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा भी इंट्रोड्यूस किया. एंड वी वर द ओनली यू कैन से आउटलेट इन खड़गपुर जो कि बर्गर एंड पिज़्ज़ा उस टाइम पे हम सर्विस करते थे. मेक्सिकन ऑल्सो. सो वी वेर अगेन वो जो QSR मॉडल होता है, क्विक सर्विंग रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप आइए, आप खाइए, यू कैन सिंपली मीन्स हैव सम टाइम, वो हमने कर लिया था. And you were not getting a lot of North Indian foods here. So that is when we thought, हमने इसी के लिए करी रूम को सोच के ही हमने वहीं से इसका इंसेप्शन हुआ. So we thought of why don't we start a restaurant which will serve, I would say, more North Indian dishes, and let's serve the customer also in a, I would say, in a different way. Right as the name suggests, the curry room bears flavors of North India not just in the food they serve, but they have put up a visual treat for the diners in the form of well decorated interiors that closely resemble the essence of cultures and people from the north. हमने सोचा क्यों ना हम अपना थोड़ा सा अपना कल्चर का इस पे इफेक्ट डालें. दैट इज़ वाई यूल सी कि यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स भी यूज़ करी हैं. एंड इन दोज पेंटिंग्स ऑल्सो इट्स मोर ऑफ आपका जो कल्चर है हमारा इंडिया का, वो आपको वो डिपिक्ट करता है. प्लस इवन इफ़ यू सी द जार्स जो हमने लगाया है, उसमें भी यूल सी दैट यूल फाइंड ऑल द स्पाइसेस जो हमारे नॉर्मल इंडियन फूड्स में यूज़ होता है. Once they come in, they get an experience and they go back. It's not only food.
also the ambience, which matters a lot. The restaurant remains open from 11 in the morning to 11 in the night with a little flexibility for the customers. With regard to delivery, they have had their own service as well, as they are proceeding with Zomato and a few local delivery partners. Plus we also deliver अपने यहाँ से भी. If you have an order and means you can simply call us, you can give your order and we'll definitely deliver it to your place. 2 लोकल पार्टनर्स भी हैं हमारे साथ में. एक फूडल है और एक टैंगो है, जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है. पेपर वर्क हो चुका है. टैंगो और फूडल वो भी, उससे भी हम कर रहे हैं डिलीवरी. For family and friendly gatherings and celebrations, be it an anniversary or a birthday, they do their best with regard to decorations, cakes, and props, which comes along with good food. To be truthful, the curry room has the most distinguished and flavorsome menu in the entire city. Just going through the pages would be a visual treat to your eyes. You'd be curious enough to know about the food, about the stories that whisper in its backdrop. जैसे कि हम लोग का स्टार्टिंग से ही था कि खड़गपुर में जो नॉर्मल फूड मिलता है उससे हम लोग कुछ डिफरेंट करेंगे. हमारा था कि हम मेन्यू को लिमिटेड रखेंगे, पर अवेलेबिलिटी हमेशा हमारे पास रहेगा और उसमें कुछ अलग होगा. तो ऐसा करके हम लोग ने बहुत सिलेक्टेड और बहुत अच्छा डिश, मतलब कुछ जो हटके है, जो नॉर्मल आपको यहाँ पर नहीं मिलता, वो सब हम रखने की कोशिश किया है. और हम हमेशा मेन्यू के ऊपर में काम करते रहते हैं कि क्या नया कर पाए यहाँ पर. हमने यहाँ पर जो मेनू में जो हमने वर्क किया यहाँ पर, वो लॉस्ट रेसिपीज़ को लेके और सिग्नेचर डिशेस को लेके हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया है. आप अगर मेनू उठा के देखेंगे, उसका जो नाम है, उस नाम से ही आपको एक अलग सी खुशबू मिलेगी, एक अलग सी पहचान मिलेगी. उस जगह के बारे में आपको जानने की मतलब ख्वाहिश जागेगी कि आप उस जगह के बारे में जान सकें, उस खाने के बारे में जान सकें. स्टार्टर है मूंग दाल भरी आलू टिक्की. बहुत सिंपल, बहुत बेहतरीन, बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन आलू का, मूंग दाल का, साबूदाने का, अदरक का. वो जो एक बेहतरीन टेस्ट आपको मिलेगा, वो और कहीं नहीं मिलेगा. इसी तरह नज़ाकत के आलू जो लखनऊ साइड से हैं, भरवन आलू है, आलू के छर्रे हैं. इस तरह से हम खाने के बचे हुए हिस्से को भी बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, जिसका नाम हमने दिया है मुर्ग खुरचन. खुरचन मतलब क्या? जो लास्ट का बचा हुआ होता है, इसको खुरच के आप हांडी से निकालते हैं, उसका अलग ही जायका आपको मिलता है. जैसे कुंदन कलिया. अब आप जब कुंदन कलिया को 2 हिस्से में बांटेंगे तो आएगा कुंदन और कलिया. कुंदन मतलब सोना, सुनहरा, और लखनऊ में बकरे के गोश्त को कलिया बोला जाता है. आज भी जो पुराने लखनऊ के बाशिंदे हैं, वो कभी भी आप उनके मुंह से गोश्त या मटन नहीं सुनेंगे, आप सुनेंगे कलिया. लखनवी क्यूजीन जो है वो 2 नाम से जाना जाता है. एक अवधी क्यूजीन जाना जाता है और एक लखनवी क्यूजीन जाना जाता है. अवधी क्यूजीन वो है जो नवाब सिराजुद्दौला से पहले का खाना जो प्रिपेयर होता था, वो अवधी क्यूजीन में आता था. और नवाब सिराजुद्दौला से जो खाना, जो मुगलई खाना लखनऊ के दस्तरखान में शामिल हुआ, उसको लखनवी खाने के अंदर शामिल किया गया या लखनवी क्यूजीन में शामिल किया गया. और ये मेरी किस्मत है कि मैं उस जगह से हूँ, उस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस खाने के घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ पर मुझे इतनी सारी चीज़ें पैदाइशी रूप में एक गिफ्ट के तौर पे मुझे मिली. और मैं चाहता हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें जो खो गई हैं, जो लोगों से बिछड़ गई हैं, मैं उन बिछड़े हुए टेस्ट से, उस बिछड़े हुए स्वाद से लोगों को मिलाना चाहता हूँ. और खड़गपुर से बेहतरीन जगह मुझे इसलिए कुछ नहीं लगा क्योंकि ये एक मिनी इंडिया है. सो लेट्स टेक अ ब्रेक. और इस ब्रेक में हम करी रूम से आपके सामने लेकर आए हैं, आपके सामने पेश करेंगे मोती महल पुलाव, जो लखनऊ के मोती महल रेस्टोरेंट का बहुत फेमस पुलाव है. और उसके बाद हम आपके सामने पेश करेंगे मुर्ग खुरचन और लाल मांस. और जायके को तड़का देने के लिए मीठे का आपके सामने पेश करेंगे हम फिरनी. हर एक जगह चावल का प्रिपरेशन आप अलग अलग पाएंगे. इसी तरह हम आपको बताते हैं कि लखनऊ का एक फेमस पुलाव बहुत अपने आप में एक बहुत
नामचीन पुलाव है, जो जिसके नाम पे वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, मोती महल पुलाव। अब इसका नाम मोती महल पुलाव क्यों पड़ा वो आप जान लें। इसमें 3 तरह के मोती हम पिरोते हैं। एक हरे रंग का मोती होता है, एक पीले रंग का मोती होता है और एक काले रंग का मोती होता है। अब आप सोचेंगे कि मोती तो मोती होता है, उसमें कलर कहाँ से आ गया। तो हम उसमें भुट्टा यूज़ करते हैं, कॉर्न यूज़ करते हैं जो पीले रंग का होता है, हरा मटर यूज़ करते हैं जो हरे रंग का होता है, और काला चना यूज़ करते हैं जो ब्राउन कलर का होता है। तो जब इन तीनों को हम चावल में पिरोते हैं तो सफ़ेद मखमलमल पे वो मोती बिखरे हुए आपको नज़र आते हैं, जो बहुत आपको दूर से ही बहुत लगेगा कि ये कुछ अलग ही चीज़ है। और उसकी मिठास, चावल की मिठास, मकई की मिठास, मटर की मिठास और चने की मिठास जब चावल के साथ मिलती है तो चावल का जायका वो दुगना कर देती है। Murg Khurchan is believed to have its origin in the tawa cooking technique of Awadh. When a dish was cooked on a tawa or pan, say a bhuna gosht, the best part often consisted of the masalas and the meat juices that clung to the bottom of the pan. And so arises the term khurchan, which means to notch out. Well, it is made from scratch, remnants of shredded chicken combined with bell peppers and dimly spiced up with Indian flavors. राजस्थान मतलब जहाँ राजा लोग रहते थे, वहाँ का एक बहुत सिग्नेचर और बहुत ही पुराना डिश लाल मांस। लाल मांस के बारे में अगर आपसे कहा जाए तो मटन एकदम से मिर्च के मसाले में डूबा हुआ होना चाहिए। उसमें जो मिर्च यूज़ किया जाता है वो मथानी मिर्च होता है। मथानी जयपुर के पास एक छोटा सा गांव है जो अपनी मिर्च के लिए, मिर्च की खेती के लिए फेमस है, और वो मिर्च आपको खाने में बेहतरीन अरोमा और कलर देता है। एक अलग मिर्च की एक अलग खुशबू और एक अलग रंगत आपको मिलती है, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होता है। और कलर, उसका जो रंग है एकदम खिला खिला, एकदम टपकता हुआ लाल, जिसको कहते हैं टपकता हुआ लाल खूनी कलर, वो कलर आपको लाल मांस में मिलेगा। Lulled by the stories behind these dishes, as well as behind several others sitting in their menu, we finally took our seats to grace our taste buds and our tummies with the Moti Mahal Pulao, the Murg Khurchan, and the Lal Mas that Ankit ji had prepared for us. We got served. And the taste was so delicious and drooling that we forgot everything else and jumped in with our spoons. Like all other services, the curry room had taken a big blow due to the nationwide COVID pandemic, which led to its complete shutdown just 3 months after it was opened, back in December 2019. Now, they are running with a staggering staff count who really are cheerful and dedicated people. तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी प्रॉब्लम था, कस्टमर्स का फुटफॉल बहुत कम मतलब ना के बराबर। जो 100% होता था उस हिसाब से 8% 7% फुटफॉल होता था। अब जाके थोड़ा बहुत पहले से चीज़ सुधरा है, अब थोड़ा फुटफॉल बढ़ा है, फैमिली भी आ रहे हैं, तो काफ़ी हुआ है पहले से। अब लग रहा है कि दुर्गा पूजा आते आते थोड़ा तो ठीक हो जाएगा। But still, I would say that we are taking necessary precautions. They can be very much assured that on health side, we'll make sure that there is nothing, it's proper hygienic. We serve hygienic food plus everything is proper hygienic. So customers are, I would say, most welcomed at this time. We used to love when they used to visit us before the COVID situation. Definitely, we have started getting the customers. आस्ते आस्ते आ रहे हैं customers. I would say that they are most welcome. जैसे कि इलिस फेस्टिवल, हिल्सा फेस्टिवल हो गया, नोलन गुड फेस्टिवल, उसके बाद इंडियन में जैसे कि तंदूर फेस्टिवल हो गया, तो तंदूर का आपको मतलब बहुत ज़्यादा रेंजेस मिलेंगे खाने में। तो वैसे ही हमको हर सीज़न के हिसाब से फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस करना है। अभी करी रूम का हमारा जो आगे का प्लान ये है कि हमको इसमें एक बैंक्वेट भी स्टार्ट करना है। तो हमारा प्लानिंग है कि इसके फर्स्ट फ्लोर में हम एक बैंक्वेट स्टार्ट करें। और अभी तक खड़गपुर में बुफे
कहीं भी नहीं है, जहाँ पर एक टोकन मनी दे के आप बुफे अनलिमिटेड फूड खा सकते हैं। तो हमारा फ्यूचर प्लानिंग्स बुफे के लिए भी है। I also have that thought कि why don't we introduce the laugh clubs here, right? So वो भी चीज़ है, मैंने सोचा है जब whenever we start with our banquet, we thought of getting some जो आज के टाइम पे जितने भी मीन्स ओपन माइक में कॉमेडी होते हैं वो सब चीज़ें भी हमने सोच रखा है. Definitely we would have done it, but yes, because of this lockdown it will take some time, but that is in our mind. We are going to introduce that as well. So, with this, we wrap up our second episode of Flavors of Kharagpur. And for this, we had delicious North Indian food here at Curry Room. Well, we had Moti Mahal Pulao and Mood Khurchan from Lucknow. Then we had an authentic Rajasthani cuisine called Lal Mas, which had all the earthen flavors from there. And we had kheer to end up. So, it was as North Indian as it could get in here, and I'd say all of you to come over here and taste their authentic North Indian food. That is so diverse in all the texture, all the tastes, and well, the spread is great as well. This is, I guess, the most premium restaurant in Kharagpur, and well, come over here, taste their cuisines, and let us know how you like this place. Till then, take a break and see you in the next episode.